Good morning, students. Today's my topic is what? Semiconductors. Now, there are two types of semiconductor. The first one is what? Intrinsic. And the second is extrinsic. What is the difference between intrinsic and extrinsic semiconductor? That is, this extrinsic semiconductor is more valuable comparing to what? Intrinsic. Okay, this is more conductive or more operative comparing to what? Intrinsic semiconductor. Now, what is intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor is what you call a pure semiconductor. It is what? A pure semiconductor. Pure means it does not contain any kind of impurity. But comparing to intrinsic, if I'll discuss about extrinsic, it is what? Impure. That is, we used to add some kind of impurity in it, okay, to make it more convenient and more valuable. Because we have so many devices on the basis of extrinsic semiconductor. So it is also of two types. The first one is what? N-type. N-type means what? Negative type. And the second is what? P-type. P-type is called as what? Positive type. Okay, intrinsic semiconductors are of two types, N-type and P-type. N is what? Negative type, and P is what? Positive type. So we'll discuss it on later on. Let's talk about now intrinsic semiconductor. That is, I discussed earlier that it is also called as what? Pure semiconductor. Now we are going to take an example of intrinsic semiconductor as now if we take the example of silicon or germanium, you can take anyone. So as we know that in silicon, okay, its valence is what? 4, means there are 4 electrons are here and these 4 electrons are responsible for covalent sharing with other 4 electrons present around it. Okay, this is what at its initial condition. But what happens when we allow some kind of thermal agitation? Thermal agitation means if we provide some thermal heat here, what happens? Thermal heat or agitation you can say. So when we provide the heat, what happens? One of the electron from its valency, okay, jump out somewhere to the nearest one or may leave its space. ये अपनी स्पेस को क्या करेगा? छोड़ देगा अगर इसको हीट प्रोवाइड करेंगे. तो जैसे ही अपनी स्पेस को छोड़ देता है, व्हाट विल हैपन? ये कंडक्टर में फ्री हो जाएगा और जैसे ही फ्री होगा यहाँ पर इसकी स्पेस क्या होगी? वैकेंट हो जाएगी. एंड दैट वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट? होल. इसको हम क्या बोलेंगे? होल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी और स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा यहाँ पर. तो इस गैप को ऑक्यूपाई करने के लिए इसके आसपास का जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर इसको ऑक्यूपाई करेगा और वापस यहाँ पर क्या होगा? होल क्रिएट होगा. तो ऐसे क्या होगा? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन धीरे धीरे क्या होगा? इनसाइड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाएगा. बट इसके लिए हमने प्रोवाइड क्या किया? हमने प्रोवाइड किया हीट. ओके, अपने नेचुरल कंडीशन में तो ये कैसा था? अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन था. बट जैसे हमने हीट प्रोवाइड किया, बराबर, क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्टर में कहीं और चला जाएगा किसी और प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, और उसकी प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए क्या होगा? उसी आसपास की कोवेलेंट शेयरिंग में से कोई एक इलेक्ट्रॉन आकर इसको ऑक्यूपाई करेगा. तो इससे क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी. और ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई? ड्यू टू हीट, और जो आपने हीट बाहर से अप्लाई की. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है
इज़ इक्वल टू वॉट, नंबर ऑफ होल बराबर इज़ इक्वल टू वॉट, दैट इज़ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये जो मोमेंट ऑफ होल है, मोमेंट ऑफ होल कहाँ होगी, ये होगी ऑलवेज टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स द होल। तो ये जो मूवमेंट होती है, हम जानते हैं अगर मूवमेंट क्रिएट होगी चार्ज की, तो अगर जब चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज फ्लो होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेरिएशन होता है वो अपनी प्लेस से जब चेंज हो रहा है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। यहाँ पर जो होल है, होल को हम कंसिडर करेंगे एज अ चार्ज कैरियर। इट एक्ट्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, और जब चार्ज मूव करता है तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, अगर उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुई तो ये करंट क्या प्रोड्यूस होगी, I इज इक्वल टू IE प्लस IH। ओके, दैट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ होल्स। क्लियर। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन अकर्स। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ जाएगा और होल कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। ओके, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स। द रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विथ अ होल। इसमें जो रिकॉम्बिनेशन होता है क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड हो रहा है, होल से कोलाइड हो रहा है। बराबर। तो इस तरह से क्या होता है, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर थर्मल एजिटेशन के थ्रू क्या प्रोवाइड किया, हमने मोशन प्रोवाइड कर दिया। बराबर। कैसे मोशन प्रोवाइड किया कि जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस को लेफ्ट करेगा और वहाँ पर जो कोवेलेंट शेयरिंग में एक शेयरिंग एम्प्टी हो जाती है, उसको कौन ऑक्यूपाई करेगा, पीछे का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर जो होल क्रिएट होगा, होल को हम बोल सकते हैं इट एक्ट्स एज अ चार्ज कैरियर। ये कैसा एक्ट करता है, चार्ज कैरियर की तरह। ओके।